Before watching the video, make sure you subscribe to our channel and hit the notification bell so that you don't miss out on some amazing content from the Spotlight. Hello, guys, and welcome to the brand new episode of the Entrepreneur Talks. Today, we have with us the founder of Sports App, Mr. Shashank Mishra. So, without further ado, let's dive right into it. Hello, Shashank. Welcome to the Entrepreneur Talks. Thank you, sir. Thank you for having me on this show. It's a very good feeling that you can actually share your experiences with all these talk shows among the young entrepreneurs. And I'm very excited to share mine with the fellow entrepreneurs who are willing to take up the entrepreneurship. Great. When we talked before, you said that to me that you did your engineering, and after that, while doing your MBA, you started this. So, but how did the idea of Sports App come to your mind? So the idea basically hit me when I was in my final year BTech in 2016. I thought to myself, because I personally also wanted to be a professional sports person back in my time. So it all started in 2007 when I was in my class 9. So, but I belong from Varanasi region and we don't have much good facility or services there. In which sports you Cricket. Okay. So I had to move back to Lucknow in the Kanpur in the state of Uttar Pradesh to take up the information and take up a decision whether to go for it or not. So the information gap was there. Back in 16, I thought about it again and I thought to myself that still in the digital age, we do not have one single startup which is actually solving an issue for serious athletes who want to pursue their career in sports. I mean, for Naukri, we have Naukri.com. For travel, we have Make My Trip. But if you talk about sports, you have fantasy engagement, fan engagement, but nothing sort of platform for the serious athletes. So that's where the idea came in, and that's where I started my MBA as well after CAT, and I started this venture. Right. So, when you entered, when you started this sports app, you suggested that कि जहाँ पे जैसे नौकरी जैसा है वहाँ पे sports app जैसी कोई ऐप नहीं थी कि जहाँ पे the sports athletes can find their way कि एक sustainable career बना सके वहाँ पे. So can you suggest me what are other loopholes in Indian sports industry right now? So when I was doing my market research after having this idea, because I thought that this is the something problem that I should be solving for the young sports person. But वो idea आने के बाद you cannot start a business right away, right? You have to do certain market research, primary and secondary research. So while I was doing my market research with the Delhi University students who are eventually the national level athletes, I got to know that the issue is there and the information is not only the issue that they are facing, the sponsorship and the funding is also an issue for them, because at certain age, 18-19 के बाद, they have to feed their family as well, they have to sustain as well, और वो घर के पैसे से होता नहीं है. So they required brand to support them, they require private bodies to support them so that they can pursue their sports career. Interesting figure that we came to know during my market research is that we built this platform for the Gen Zs. The average age of a Gen Z starts from 9 and it goes up to 27. So we thought कि अगर हमने यहाँ इनको अच्छे से access provide कर दिया, then we will be able to build sports person for the future in India. So the audience that the Gen Zs currently which are aspiring to be a sports person here in India is close to 80 million. But because of the high mortality rate, means the youngsters leaving the professional sports, वो मिल नहीं रहे. I mean, recently we saw कि only 66 athletes went to Tokyo Olympic along with the Indian hockey team, men and women. So वो number हमें 80 million 66 में दिख रहा है, right? So we are not seeing that transition. So I thought कि if we provide the proper access to that 80 million space, they will not leave sports as a career, and we will eventually see good premium athletes naming India in future. Right. So you talked about market research here. So lot of young entrepreneurs, when they start their entrepreneurial journey, they just went into it कि idea आया, चलो business start करते हैं, market research ये ऐसा सब कुछ करना देख लेंगे, ऐसा attitude रख के कि जुगाड़ कर लेंगे. Correct. जुगाड़ is being resourceful is part of being an entrepreneur, but you have to do market research to understand your customer better कि आपका target audience क्या है, आपको वो पता चलता है. So can you point out what are the benefits of doing market research and how one can actually conduct the market research in a good manner or in a right manner? The most important benefit of a market research is to save time, because अगर गलत idea pick कर लिया और उस पे एक साल invest कर दिया, then सब कुछ गया, right? So to save time, you need to do the market research कि ये जो need gap मैं fill करने वाला हूँ, whether it is required or not amongst the customers that I'm going to target.
market research basically happens in two ways, primary and the secondary. So initially when you hit yourself with the idea, you do a secondary research sort of कि online देख लिया कि अभी current solutions क्या क्या हैं, कौन कौन से solutions customers opt कर रहे हैं, and why your solution is different. Once you feel कि my solution is different from the current solution which the customers are currently getting, then you land upon कि चलो primary research करते हैं, एक TG में ले लेता हूँ 200 लोगों के sample को, मैं सेट ऑफ क्वेश्चनर प्रिपेयर क्या होता है? टारगेट ग्रुप। ओके, तो सेट ऑफ क्वेश्चनर आप प्रिपेयर करते हो, यू गो टू दोस टारगेट ग्रुप्स और एक सैंपल से आप मार्केट रिसर्च करते हो। दैट मार्केट रिसर्च विद द कस्टमर्स हु आर गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट गिव यू कॉन्फिडेंस दैट दिस इज नॉट द इमेजिनरी प्रॉब्लम एंड दे सपोर्ट योर प्रोडक्ट एंड दे सपोर्ट योर आइडिया एंड दैट्स वेयर यू थिंक कि चलो अब इसमें आई नीड टू बी बिल्डिंग अ प्रोडक्ट व्हिच इवेंचुअली आई विल बी स्टार्टिंग। So this is how the market research basically helps. So like, what is the actual process of raising a fund? Like, if any young entrepreneur want to start their business, if they have a great idea and they are like कि हाँ इससे ऊपर पैसा fund कर सकते हैं, like how they can, what is the formal structure of it? Okay, so अभी if you want to raise a capital in a particular industry, कोई भी सेक्टर है आप चूज करते हो, आपका वो स्टार्टअप है और आपको रेज करना है, तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से काम करती है। सो लेट्स सी कि कोई प्रूवन सेक्टर है, लेट्स से एडटेक प्रूवन सेक्टर है, अभी स्पोर्ट्स में भी जो फैंटेसी वाला है वो प्रूवन सेक्टर बनता जा रहा है, तो इन्वेस्टर्स आर टचिंग दैट सेक्टर, जो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज वी आर सीइंग राइज। बट आप एडटेक में भी देख लो, आप फैंटेसी में भी देख लो, एक टाइम के बाद ही इन्वेस्टमेंट हुआ था। ड्रीम 11 स्टार्टेड इन 2008 एंड 9, बाइजू स्टार्टेड इन 2008, बट उनको पहला चेक जो 1 मिलियन या 2 मिलियन का था वो 2012 या 13 में मिला था। तो इट टुक लाइक 3 to 4 years फॉर देम टू प्रूव कि दिस इज अ बिजनेस एंड दिस इज अ मार्केट और ये इवॉल्व कर सकता है, राइट। एक बार जब वो मॉडल प्रूव हो गया तो उसके बाद के जितने स्टार्टअप्स आए थे उनको वेट नहीं करना पड़ा, उनको वो चेक बहुत ही जल्दी मिल गया था। सो आपको जब आप वो सेक्टर चूज करते हो तो ये चीज़ डिपेंड करती है। हमारे लिए थोड़ा सा टफ था इन्वेस्टमेंट रेज करना, क्योंकि अभी वो प्रूवन मॉडल नहीं है, वी आर द कैटेगरी क्रिएटर्स, अभी हमारा पहला स्टार्टअप है उस वर्टिकल में, सो वो थोड़ा सा टफ हो रहा है उस मॉडल को प्रूव करना, दिखाना कि हाँ मार्केट इंक्रीज कर सकता है। सो बेसिक चेक्स टू रेज अ कैपिटल की इनिशियली लेट्स से आपने प्रूव कर लिया सब कुछ, आपने पहले फ्रेंड्स एंड फैमिली से आपने प्रोडक्ट बिल्ड कर दिया है, अब आपने कुछ इनिशियल ट्रैक्शन अचीव कर लिया है, एंड ऑल्सो यू हैव द मार्केट रिसर्च ऑफ द इंडस्ट्री दैट यू आर टचिंग। तो सेकेंड चेक इज कि आप अब इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हो तो राइट अवे आप VCs के पास नहीं चले जाएंगे कि मुझे 1 मिलियन का चेक चाहिए। यू गो टू एंजल इन्वेस्टमेंट फर्म्स, यू गो टू एंजल सिंडिकेट्स, जस्ट लाइक लेट्स वेंचर है, मुंबई एंजल्स नेटवर्क है, तो आप इनके पास जाते हो, आप इनके नेटवर्क से जुड़ते हो, दे डू ड्यू डिलिजेंस फॉर द एंजल्स हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट। सो वहाँ से आप एक एंजल इन्वेस्टमेंट खाते हो जो कि फ्रेंड्स एंड फैमिली से थोड़ा बड़ा होता है। दैट कैपिटल बेसिकली यू रेज टू स्केल योर वेंचर, कि उस कैपिटल के साथ आपने जितना स्केल कर सकते थे आपने कर लिया, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर अ VC फंड। अब मुझे एक्सपेंड करना है और बहुत ही ज्यादा स्केल करना है, नाउ आई नीड योर फंड, तब आप एक VC के पास जाते हो। तो these are the few checks that you follow to raise investment. So like my next question is that only that right now lot of people after the pandemic have said that कि masters degree करने की जरूरत नहीं है, and I am one of them. I have done my bachelor's only and I am like कि नहीं मास्टर्स के लिए वेट करता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही मैं करूँगा। But you have done your MBA from one of the finest institute in India. So like how it helps? Like if अगर आप MBA कुछ अच्छी इंस्टीट्यूट से करते हो, so like किस तरीके से आपको वो हेल्प करता है अगर आपको बिजनेस भी स्टार्ट करना है या तो फिर आपका करियर भी वो करना है? एक्सेस अनलॉक हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ों का। एक तो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको टैलेंट चाहिए, कॉलेज अच्छा है, आपको टैलेंट तुरंत मिल जाएगा, कोई इंटर्न्स हायर करने हैं आपके सामने इंटर्न्स हैं, आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 एक्सेस हो गया। दूसरा, अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए तो आपके पास जो वहाँ के मेंटोर्स हैं कॉलेज के, वो सर्टिफाइड मेंटोर्स हैं, दे विल हेल्प यू टू बिल्ड समथिंग दैट यू आर विलिंग टू। राइट, सो वो मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इनिशियली मेरे MBA डेज में काफ़ी अच्छी मेंटोरशिप मिल गई थी। राइट। थर्ड एक्सेस ये होता है कि बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं जो गवर्नमेंट सपोर्टेड होते हैं। तो अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपने कुछ इनिशियल काम किया है, तो आपको स्पेस चाहिए काम करने के लिए, इवन आपको फंडिंग चाहिए गवर्नमेंट से, तो वो भी आपको मिल जाती है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनिशियली एक इंक्यूबेशन मिल गया, छोटा सा कैबिन है मेरा, मैं इंटर्न्स को लाके यहाँ पे बैठ के डिटेल डिस्कस करके बिल्ड कर रहा हूँ अपना प्रोडक्ट, और साइड बाय साइड मुझे इनिशियली कुछ कैपिटल भी मिल गया जो कि मुझे घर से नहीं लेना पड़ रहा है। मुझे 5 लाख 10 लाख रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इस स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए।
सो वो एक्सेस वाला जो चीज़ होता है ना, वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म में जाके अनलॉक हो जाता है। तो आपको उन सारी चीज़ों के लिए फाइट नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ फाइट करना पड़ता है आपको बिजनेस बिल्ड करने के लिए। मुझे बिजनेस बिल्ड करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ट्रैक्शन लाना है और इसको स्केल करना है। That's it. Right. Does it help you in raising fund also from VCs? Exactly. I mean, I raised my first angel round from the alumni of that particular college. So he was a 90s batch BTech student from DTU, and he right away liked the idea because he was a sports buff, and he said कि चलो ठीक है मैं करता हूँ। And I was also the government supported startup as well, so वो एक verification मिल जाता है कि चलो these guys are doing something different, चलो invest करते हैं। हाँ. So the first capital मुझे सिंगापुर से मिला था, वो ऐसे ही मिल गया। Right. How has failure helped you in your later success, and what is your favorite failure? Okay, favorite failure. मतलब failures तो काफी ज़्यादा रहे हैं लाइफ में। हाँ. उनमें से अगर आपको कोई फेवरेट फेलियर रहा हो कि जहाँ से आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हो, या तो फिर आपको ज़िंदगी में उस पर्टिकुलर जो आपका टाइम पीरियड था उसने काफ़ी ज़्यादा सिखाया। मैं मोस्टली इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, बट क्वेश्चन आ गया तो मैं शेयर करता हूँ। इट वॉज अ टाइम 2012-13 में when I started my MBA with a particular college in Bhopal. Right. But because of some cases I left that college. एंड वो मेरा थोड़ा सा टाइम काफ़ी अदर चीज़ों में इन्वेस्ट हुआ। मैंने म्यूज़िक को परस्यू किया, मैंने गिटार एज अ इंस्ट्रूमेंट पिक किया, मैंने उसको सीखा, थोड़ा सा मन शांत होता है उससे। तो दैट वाज समथिंग कि हाँ, वो घर वाले भी थोड़े परेशान थे कि यार इसने कॉलेज को छोड़ दिया, बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू समथिंग एल्स, और मुझे वो करना नहीं था। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर अगेन मैंने अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। सो दैट वाज द टाइम जिसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया और एज अ पर्सन बिल्ड किया, क्योंकि स्कूल के बाद आप कॉलेज हो। Like, can you point out what are those 2-3 things that that period taught you? It taught me to have patience. It taught me to take words from people कि respond back नहीं करना है, ठीक है वो बोल रहा है सुन लो। It taught me to have perseverance in my life कि यार चलो ठीक है, I have to fight, I cannot just give up, और this is not the end, this is just the starting। और अगर मैं गिव अप कर दूंगा तो दिस विल बी द एंड, बट अगर मैं सोच के चलूंगा कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना, दिस इज गोइंग टू द स्टार्ट। एंड वहाँ से फिर आप लर्निंग लेते शुरू करते हो, लोगों से सीखते हो यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, और उनसे सीखते हो, अच्छे लोगों से सीखते हो, बुरे लोगों से भी सीखते हो। तो वो धीरे धीरे आपकी लर्निंग इंक्रीज करती है और फिर वो विजडम बन जाती है। Right. So like you mentioned patience and perseverance, and these are like two topmost quality an entrepreneur should have in them. So my next question is that as an entrepreneur, if you have to do just 2 things for your company, what are those 2 things for you? अच्छा, so I like product management because मैंने scratch से product build किया है, so I like product management and I like hiring as well. So मुझे HR वाला काम भी अच्छा लगता है, to manage people कि हाँ ये तुम ऐसा कर लो, इसको hire कर लेते हैं, you know, just to take feedback, just to give feedback कि हाँ ऐसा समझ। So अगर मुझे future में 2 चीज़ें करनी होगी, so I'm going to pick product management and hiring or HR वाला। So like, what is the difference between a 20-year-old Shashank and 28-year-old Shashank? What are those differences? ठहर गया है थोड़ा शांत उस टाइम पे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों कभी इधर कभी उधर कभी इधर रहता था, बट अभी ये कि नहीं है, मे बी एक्सपीरियंस की वजह से लाइफ फोकस नहीं था बहुत सारी। हाँ, बहुत सारी चीज़ों पे था, फोकस्ड है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज व्हेन यू टेक अ चेक फ्रॉम एन इन्वेस्टर यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू गिव अ रिटर्न, सो आप इधर उधर नहीं जा सकते, तो फोकस्ड है, रुका हुआ है, लाइफ चल रही है, इस पे काम करना है। सो दिस इज अ डिफरेंट, आई बिलीव द एक्सपीरियंस मोस्टली। other thing than focus, शशांक मोटा हो गया है, काफी पहले बहुत पतला था और लाइफ का एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। इनिशियली लाइफ का पर्सपेक्टिव डिफरेंट था, बट अभी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, बिकॉज वो आपको बाउंड करती हैं। पहले में लगता था यार ये क्यों इतना काम करता है, या फिर ये क्यों फैमिली लाइफ क्यों कर रहा है, उतना पता नहीं था रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट प्ले करती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये फिगर आउट कर लिया मैंने कि वंस यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन बिकम अ पर्टिकुलर लीडर इन एनी सेगमेंट, क्योंकि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। यू कैन टेक आउट एनी लीडर, किसी की भी आप बायोग्राफी पढ़ लो, आपको पता होगा कि उनकी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दैट्स हाउ दे बिकम द लीडर। सो इफ यू
have the responsibility, you will actually have the leadership skill in you, because फैमिली में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, let's say फादर होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, हमारे लिए वही लीडर है, राइट? सो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स लीडरशिप. Right. Who is the entrepreneur you admire the most and why? थोड़ा सा क्लीशे टाइप हो जाएगा. So I admire Steve Jobs. Okay. So 17 में Steve Jobs is known कि वो इंडिया आए थे और एक आश्रम में रह के गए थे. So when I completed my BTech, I was about to join my MBA. So वो जो gap था बीच में, I went to that ashram as well. So वो एक दिन मैं वहाँ रुक के आया था. So I felt the energy there. So मैंने वो सोचा कि यार he has been able to do something interesting, and मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था स्क्रैच से एक ऐसी कंपनी बिल्ड कर दी, $1 trillion कंपनी बिल्ड कर दी, which was tremendous. मतलब नहीं हो सकता, वो बहुत मुश्किल है. सो वो मुझे ड्राइव किया, और वापस से मैं जब वहाँ आश्रम में गया तो एक अलग ही एनर्जी फील हुई. आई बिलीव कि दोज आर द रीजन व्हाई आई एम लाइक सिटिंग हियर एंड टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज वहाँ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, मोमेंटम मिला, जिसको मैं ग्रैब करके चल रहा हूँ. Right. What is the one thing about entrepreneurship you enjoy the most? अनसर्टेनिटी. मतलब आप आप ऐसे नहीं रिलैक्स नहीं कर सकते, कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते कि चलो ठीक है आज ये कर दिया है, पीपीटी साइन कर दिया, भेज दिया है, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं. तो हर स्टेप पे कुछ ना कुछ होगा. अभी किसी को कॉल आ जाएगा, फिर ऑपरेशन में कुछ हो गया, सेल्स में कुछ हो गया, टेक में नहीं हो रहा है, ऑपरेशंस वाले टेक को लेके आ रहे हैं कि उनके डिले की वजह से हमारा काम नहीं हो रहा है, तो वो अनसर्टेनिटी रहती है. फिर वो कैपिटल लेके इन्वेस्टमेंट लेके आना है, तो वो बेस्ट है. मतलब वो मुझे एज पे रखता है. What is the one advice you want to give to a budding entrepreneur, and what is the one advice they should ignore? Okay, so I believe have patience plus perseverance into yourself, because पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी तुरंत नहीं होने वाला. बहुत टाइम लगता है चीज़ों को बिल्ड करने में, होने में, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में, और पेशेंस से भी सब कुछ नहीं हो सकता until unless you have perseverance. क्योंकि इन्वेस्टर्स बोलेंगे आज नहीं कल मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलते हैं, 6 महीने बाद मिलते हैं. So you should be having that perseverance as well to approach those investors back in time, कि बार बार मुझे जाना है, उनसे अप्रोच करना है, उनसे फॉलो अप करना है, अपनी अपडेट्स देनी है, अपनी प्रोग्रेस शो करनी है. So patience plus perseverance is the advice from my side. Be away from the limelight of the entrepreneurship. जो स्टार्टअप वर्ल्ड का जो लोग दिखाते हैं ना कि बस इन्वेस्टमेंट आ गई, लाइफ सेट है, लाइफ सेट है, बहुत पैसे आ गए यार, उसके बाद इतने मिलियन की फंडिंग आ गई, उसके बाद इतने बिलियन की फंडिंग आ गई. सो stay away from that, because कुछ भी easy नहीं होने वाला है. You have to use that capital as a growth capital, and जितना ज़्यादा capital आप raise करोगे उतने ज़्यादा आप responsible होगे जिससे आप capital raise कर रहे हो. So बहुत responsibility increase करेगी. So always be on ground, और इन सारी चीज़ों से दूर रह के focus and have patience and perseverance. Right. So true कि जो limelight वाला जो चीज़ है, this is the reason that we started this podcast Entrepreneur Talks, because when I passed out in 2019 from my college, there was a buzz around startup world, चालू करना, और चालू किसके लिए करना था? स्टेटस चाहिए लोगों को, ये मैं फाउंडर हूँ, ये है, लिंक्डइन पे जाके लिख देंगे फाउंडर, वो सब. तो ये लोगों को ये चाहिए था, बट दिस इज नॉट द ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप. सो मुझे यही करवाना था इसके थ्रू. सो लाइक आई होप कि ये थोड़े लोगों को भी ये हेल्प कर रहा होगा. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस एपिसोड. आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, फंड कैसे रेज करना है, वो सब चीज़ों के बारे में. We are going to bring more and more exciting entrepreneurs to in the Entrepreneur Talks. So please like this video, share this video with your friends, share this video with the friends who want to start their career into sports. तो स्पोर्ट्स ऐप एक काफ़ी अच्छा एक जरिया हो जाएगा, और ये एपिसोड भी उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा. And please do subscribe to this channel for more videos and the episodes on Entrepreneur Talk. Thank you so much.